My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions from the topic of time, speed, and distance that have appeared in previous years in the SRCC GBO examination. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram or WhatsApp channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So, in time, speed, distance, there is one important formula: the time is into speed is equal to distance. And there are three prominent cases. Case number one, when time is constant. So if time is constant, then distance will always be proportional to speed. So ratio of distance will be equal to ratio of speed. Second case is when speed is constant. So if speed is constant, then distance is proportional to time. And third and most important case is when the distance, time into speed is constant, or basically distance is constant. So if distance traveled is constant, which implies that time into speed, this is constant. So time and speed are inversely proportional. And the ratio of time will be exactly opposite of ratio of speeds in this case. So to start the questions, so the first question, there are two concentric circular tracks of radii 100 meters and 102 meters respectively. A runs on the inner track and goes once round the track in 1 minute 30 seconds, while B runs around the outer track in 1 minute 32 seconds. So who is running faster? So there are two concentric circular tracks. Radii given है 100 meter and 102 meters. ठीक है, so inner track and outer track. इनर ट्रैक का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? दैट विल 2 पाई इंटू रेडियस, तो 2 पाई इंटू 100. एंड फॉर आउटर ट्रैक द पेरीमीटर विल बी 2 पाई इंटू 102. दिस इज पेरीमीटर और डिस्टेंस दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड. एंड टाइम टेकन इज गिवन एज 90 seconds for A, or A is traveling in the inner track, and 92 seconds for B. Speed for A and B respectively will be distance by time. So 2 pi into 100 by 90. 2 pi into 100 by 90. And that for B will be 2 pi into 102 by 92. और क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज रनिंग फास्टर, यानी कि स्पीड्स को हमें कंपेयर करना है. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और यहां पे 0 से 0, यानी कि 10 by 9 is to 51 by 46. और कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो दिस विल बी 10 into 46, 460 is to 459. So ratio of speeds is 460 is to 459, यानी कि higher speed will be in case of A, in case of the person who is running in the inner track. So A will be the answer, option A will be the answer. Clear है? ठीक है, so A will be running faster than B, और ratio of speeds will be 460 is to 459. Okay. Next question. A boat travels upstream from B to A and downstream from A to B in 3 hours. Total time taken is 3 hours. और distance traveled क्या है? Same है. From B to A and then from A to B. Total time taken is 3 hours. Speed of the boat is 9 km per hour in still water and speed of the current is 3 km per hour. तो बोट का स्पीड है 9 km per hour और स्ट्रीम का स्पीड है 3 km per hour. तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 9 minus 3 which is equal to 6 km, and downstream speed will be 9 plus 3 12 km per hour. 6 km per hour and 12 km per hour, यानी कि स्पीड का रेशियो विल बी 1:2. एंड डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम ही है दोनों केसेस में. अगर B से A तक का डिस्टेंस D किलोमीटर था तो D किलोमीटर गया और D किलोमीटर लौट के आया. तो 1:2 स्पीड का रेशियो है. टाइम का रेशियो विल बी एक्जैक्टली अपोजिट बिकॉज डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, 2:1. और टोटल टाइम विल बी 2 + 1 3 units, and total time is 3 hours. 3 units is equal to 3 hours, यानी कि 1 unit is equal to 1 hour. Okay, so time taken in upstream will be 2 hours और speed है 6 km per hour. तो distance D will be equal to 6 km per hour, the speed into 2 hours. So 12 km will be the distance. Okay, distance will be 12 kilometers. This is up and down, upstream and downstream. 12 will be the answer, option D. क्या है क्लियर? Okay.
Next question. A car driver driving in a fog passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 km per hour in the same direction. Direction same है दोनों का. The pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him up to a distance of 0.6 kilometers. So what was the speed of the car? If two moving bodies are moving in the same direction and their speeds are, let us say, S1 and S2, the relative speed will be S1 minus S2. If the two bodies are moving in the opposite direction with speeds S1 and S2, then relative speed will be S1 plus S2. Speeds add up हो जाएगा opposite direction में और same direction में speeds subtract होगा. So pedestrian and the car both are moving in the same direction. Okay. Both are moving in the same direction. Speed of pedestrian is 2 km per hour. And speed of car is, let us say, S km per hour. The pedestrian could see the car for 6 minutes. तो जैसे ही कार क्रॉस करती है पेडेस्ट्रियन को, क्रॉस करने के बाद में pedestrian is able to see the car for 6 minutes. Okay. For 6 minutes. And in those 6 minutes, distance traveled by the car relative to pedestrian, that is 0.6 kilometers. 0.6 kilometers. And distance traveled relative to the pedestrian is 600 meters. क्योंकि pedestrian खुद भी तो चल रहा है. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा 6 मिनट्स में 600 मीटर्स का. एंड सिंस बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड विल बी s minus 2. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि s minus 2 इफ दैट इज इन किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. 6 मिनट्स है यानी कि दैट इज 1/10 आवर, 6/60 आवर्स. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 600 मीटर्स और 0.6 किलोमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 0.6. Okay, which is basically 6/10. 6 से 6 cancel out हो गया. So s minus 2 is equal to 6 and hence s is equal to 8 km per hour. The speed of the car is equal to 8 km per hour. Clear? Okay. Next question. A man covers a certain distance on a toy train. If the train moved 4 km per hour faster, it would take 30 minutes less. If it moved 2 km per hour slower, it would have taken 20 minutes more. So what is the distance covered? Distance covered क्या होगा in this case? So we can use the straight away formula. That formula will be that distance is equal to S1 into S2 divided by delta S into delta T. Or the formula can be used as T1 T2 divided by delta T into delta S. ठीक है, so for example, in the first scenario, if a speed is S, time taken is T. Second scenario में क्या होगा? This is the first scenario. Distance traveled तो नहीं कैसे समझ में. Second case में, if a speed is increased by 4 km per hour, तो speed हो जाएगा S plus 4. And time taken is 30 minutes less, यानी कि T minus 1/2. टाइम को आर में ले रहे हैं और स्पीड किलोमीटर पर आवर में. थर्ड सिनेरियो, व्हेन स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, टाइम टेकन इज t plus 1/3. Okay, so if we compare first two scenarios, then distance as per the first two scenarios will be equal to s1 into s2 यानी s into s plus 4 divide by delta s. Delta s है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स का यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, तो डिवाइड बाय 4 इनटू डेल्टा t. टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट्स का 1/2 आवर, तो इनटू 1/2. दिस इज आवर डिस्टेंस. और वी कैन ऑल्सो से, अगर हम सेकंड और थर्ड सिनेरियो को कंपेयर करें या फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को. सो इन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इन फर्स्ट एंड थर्ड स्पीड में चेंज आया है 2 का, तो s इंटू s minus 2 डिवाइडेड बाई 2. और टाइम में चेंज आया 1/3 का, तो इंटू 1/3. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा. So s plus 4 into 3 is equal to 4 into s minus 2. So यहाँ से s comes out to be equal to 12 plus 8, 20. 20 km per hour, this must be the speed. And hence distance will be equal to s into s plus 4, 20 into 24, divide by 4 into 1/2. So 20 into 3, 60 kilometers will be the distance. Distance will be 60 kilometers. क्या ये पार्ट क्लियर है?
ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो गया और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड और लंबा अप्रोच क्या हो सकता था कि हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते डिस्टेंस के लिए। देखो 3 scenarios आर देयर। फर्स्ट सिनेरियो इज स्पीड इज एस, टाइम इज टी। सेकंड सिनेरियो इज स्पीड इज एस प्लस 4 and time is t minus 1 by 2, and third scenario is speed is s minus 2 and time is t plus 1 by 3. अब अगर फर्स्ट टू को कंपेयर करें तो डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम ही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s इंटू टी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू s प्लस 4 इंटू टी माइनस 1 by 2, which becomes equal to s into t minus s by 2 plus 4t minus 2, and this is equal to st, तो st से st कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ पोर्शन ये हमारा जीरो दे रहा है इक्वेशन में, isn't it so? So basically इक्वेशन हमारा आ गया s minus 4t is equal to minus 2, या फिर s 4t minus s, एक सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी तो ये जीरो आ रहा है, so this will be 8t minus s is equal to 4. This will be first equation. Okay, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, अब फर्स्ट और थर्ड सिनेरियो को कंपेयर कर लो, तो इक्वेशन हो जाएगा d इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 by 3. सो एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस एस बाई 3 माइनस 2t माइनस 2 by 3 multiply by 3, the equation becomes s minus 6t minus 2 is equal to 0, या फिर s minus 6t, this is equal to, this will be second equation. Now if you add both these equations, first plus second, s will get cancelled out, so 8t minus 6t, 2t is equal to 6, तो t is equal to 3 hours आ गया। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, t इज इक्वल टू 3, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो यहां से आउटकम क्या आ जाएगा 24 माइनस 4, तो s इज इक्वल टू 20 आ गया, t 3 s 20, डिस्टेंस विल बी 60। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस विल टेक स्लाइटली हायर टाइम, सो फर्स्ट अप्रोच इज बेटर अप्रोच। ओके, बट जस्ट इन केस फॉर्मूला अगर एग्जाम में रिकॉल ना कर पाओ तो उस केस में सेकंड अप्रोच फॉलो कर सकते हो। Next question. A and B start simultaneously from a certain point in east and west direction. So there is a fixed point. जैसे कि A and B are starting in east and west directions. तो A is traveling in the east direction and B is traveling in the west direction. The speed of A is 75 km per hour and that of B is 60 km per hour. Now since both are traveling in the opposite directions, तो speeds add up हो जाएगा relative speed में, distance traveled, distance between them after 20 minutes, तो distance तो add up होगा ultimately, तो distance between them after 20 minutes, this distance will be equal to relative speed between them, that will be 60 plus 75 into 20 minutes, which is 1 by 3 hours. So 45 km will be distance between them. Simple question. 45 kilometers will be the distance. Option A will be the answer. Okay. Next question. The speeds of 3 cars are in the ratio 3:4:5. The ratio of time taken by 3 cars to travel the same distance क्या होगा? Speed का ratio given है हमें 3:4:5. Distance same travel कर रहे हैं, तो if they are traveling the same distance, distance की value assume कर लो, LCM assume कर लेते हैं 3, 4 और 5 का, तो let's say distance is equal to 60 kilometers, and if this is the distance, तो टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, 60 by 3 विल बी 20, 60 by 4 विल बी 15, 60 by 5 विल बी 12, तो रेशियो ऑफ टाइम विल बी 20:15:12। ओके, अगर इन जनरल डिस्टेंस d मानते तो रेशियो ऑफ टाइम आता d by 3:d by 4:d by 5, तो d तो कैंसिल आउट हो जाता, मल्टीप्लाई कर देते 3, 4 और 5 कैल्शियम से, तो बात वही रहती, बस करने का तरीका थोड़ा बदल जाता। आंसर विल बी 20:15:12, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. A train with uniform speed crosses a pole in 8 seconds and a bridge of length 500 meters in 28 seconds. To find the length of the train. So train is crossing a pole in 8 seconds, but a bridge of the length 500 meters in 28 seconds. When the train is crossing a pole, distance traveled क्या होगा? In this case, distance traveled is equal to length of the train. But in the second scenario, when the train is crossing a bridge,
तब डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज. सो बेसिकली इफेक्टिवली फर्स्ट केस में ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल इन 8 सेकंड्स, यानी कि 8 सेकंड्स में ट्रेन इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन. बट इन 28 seconds the train is traveling two distances. In 8 seconds the train is traveling length of the train plus 20 more seconds में the train is traveling length of the bridge. So 20 seconds में train is traveling 500 meters. So यहाँ से स्पीड मिल जाएगा हमको ट्रेन का which will be 500 by 20 यानी 25 meter per second. This is the speed of the train. टाइम टेकन टू क्रॉस लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन ही है, तो यहां से डिस्टेंस और या लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा विच विल बी 8 सेकंड दिस टाइम. 25 मीटर पर सेकंड इज स्पीड. 8 into 25 200 meters will be length of the train. As simple as that. Option A is the answer. Clear? ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूं. तो ऐसे समझो फर्स्ट केस में 8 सेकंड्स का टाइम लग रहा है, सेकंड केस में 28 सेकंड्स का टाइम लग रहा है. रेशियो क्या आ रहा है? 8:28. रेशियो आ रहा है 8:28. ठीक है, और ये भी लिखना नहीं है. 2:7 का रेशियो आ रहा है. तो टाइम टेकन इन फर्स्ट केस इज 2 मिनट्स, सेकंड केस में टाइम टेकन इज 7 मिनट्स. 5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. 5 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 500 मीटर्स, तो 2 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 200 मीटर्स. बस यही फर्क है. 2 units में distance traveled will be 200 meters, so this will be length of the train. Okay, clear? Next question. 3 boys, Ravi, Madhukar and Santosh, are running in the same direction around a circular playground, and all 3 of them have started from the same point. They've started from the same point and they complete running, यानी कि एक राउंड रैक ट्रैवल करने में टाइम टेकन इज 84, 136 and 252 seconds respectively. Then when will they meet again at the starting point? तो टाइम टेकन क्या है? 84 सेकंड्स, 136 सेकंड्स एंड 252 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इन कंप्लीटिंग वन राउंड. स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा कब मिलेंगे? जब तीनों के टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इंटीजर होंगे, तभी तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिल पाएंगे. इजंट इट सो? तो पहले वाले के केस में, फर्स्ट वन के केस में, अगर नंबर ऑफ राउंड्स n1 होंगे तो टाइम टेकन विल बी 84 n1. फॉर सेकंड पर्सन दिस विल बी 136 n2 राउंड्स हो गए, और थर्ड पर्सन के लिए 252 n3 राउंड्स हो गए. और ऑब्वियसली सिंस दे आर मीटिंग, सो टाइम, टोटल टाइम विल बी सेम. टाइम तीनों के लिए सेम ही होगा. तो बेसिकली टाइम वैल्यूज विल बी मल्टीपल ऑफ 84 एज वेल एज 136 एज वेल एज 252. तो स्मॉलेस्ट सच टाइम विल बी एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज, यानी कि हमें चाहिए एलसीएम ऑफ 84, 136 एंड 252. 84 इज 12 into 7. 136 क्या आ जाएगा? दिस इज 19 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? दिस इज 17 का मल्टीपल है. 17 into 8. And 252. This is again a multiple of 7. तो this is 7 into 36. तो 7 और 17, तो पहले लिख लो एलसीएम में. बचा हुआ पोर्शन क्या है? 12 and 8 and 36. एलसीएम ऑफ 12, 8 and 36 is 72. तो 7 into 17 into 72, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन सेकेंड्स. हमें चाहिए मिनट्स में, क्योंकि वैल्यू गिवन है, तो डिवाइड बाई 60 कर लोगे. ओके, डिवाइड बाई 60 कर लोगे. 12 6 are 72, 12 5 are 60. तो 7 into 17 into 6, 119 into 6, तो 7 114 by 5 seconds, which will be 142. नो सेकेंड्स नहीं, मिनट हो जाएगा, बिकॉज में डिवाइड बाई 60 भी कर लिया ना, तो अब तो ये मिनट हो जाएगा. तो दिस विल बी 142 मिनट्स एंड 4/5 एक्स्ट्रा मिनट्स, यानी कि 48 seconds will be the answer. 142 minutes and 48 seconds, this will be the answer. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग driving at 6/7 of her normal speed, Kavita takes 25 minutes more to reach her farmhouse from her house. What is the usual time taken by her to cover the distance between her house and farmhouse? So driving at 6/7 of the normal speed, यानी कि अगर normal speed was 7, तो normal speed is 6/7, यानी कि 6 हो जाएगा स्पीड. तो अगर स्पीड 7 से 6 हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, तो टाइम टेकन विल बी, रेशियो हो जाएगा टाइम का 6:7.
1 यूनिट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 मिनट्स. So usual time is 6 units, which will be equal to 6 into 25, 150 minutes. As simple as that. Basically speed हुई है 7 से 6, टाइम हो गया 6 से 7, 1 यूनिट इज इक्वल टू 25, तो 6 यूनिट्स विल बी 150. As simple as that. इसमें लिखने की कोई ज्यादा कहानी जरूरत ही नहीं था, स्ट्रेट अवे बिना लिखे सॉल्व कर सकते थे इजिली. Isn't it so? ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A train covers a distance between two stations P and Q in 90 minutes. If the speed of the train is reduced by 10 km per hour, then same distance will be covered in 96 minutes. Distance same है, time taken earlier is 90 minutes और बाद में time हो गया 96 minutes. तो time का ratio given है 90:96, which is 15:16. तो अगर time हो गया 15 से 16, तो speed हो जाएगा 16 से 15. And this difference between the speeds is 10 km per hour. So this difference is 1 unit, which is equal to 10 km per hour. So किसी भी एक केस में स्पीड निकाल लो, 60 यूनिट्स हो जाएगा 160 km per hour, और टाइम वाज 90 मिनट्स. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 160 km per hour into 90/60. 160 into 3/2, that is 240 kilometers will be the distance. Option A. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन ट्रेवल्ड a certain distance in a car. He covered 2/5 of it at 40 km per hour and the remaining at 60 km per hour. If the total time taken is 84 minutes, then total distance क्या होगा? टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. पहले तो 2/5 डिस्टेंस कवर किया है 40 km per hour की स्पीड से, एंड देन रिमेनिंग हैज बीन कवर्ड एट 60 km per hour, यानी कि 3/5 डिस्टेंस कवर किया है 60 km per hour की स्पीड से. तो लेट अस से 2d डिस्टेंस ट्रैवल किया है विद स्पीड ऑफ 40 km per hour. So remaining will be 3d distance. 3/5 3d. The speed is 60 km per hour. So time will be distance divided by speed. So 2d by 40 plus 3d by 60, which will be d by 20 plus d by 20, and 2d by 20, which is d by 10. And this time is 84 minutes, यानी कि 84 by 60 hours. So d will be equal to 14 kilometers. और क्वेश्चन पूछा टोटल डिस्टेंस क्या होगा. टोटल डिस्टेंस इज 5d, तो 5d will be equal to 70 kilometers. Answer will be 70 kilometers. Okay. ठीक है, दिस इज वन वे टू थिंक अबाउट इट. सेकेंड मेथड क्या हो सकता था कि हमें देखो जो डिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो है 2:3. स्पीड इन द फर्स्ट केस इज 40, इन द सेकेंड केस स्पीड इज 60. ओके, तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है 40:60. अगर डिस्टेंस जस्ट इनके सेम होता, इंस्टेड ऑफ 2:3, अगर डिस्टेंस हमारा सेम होता तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो 2:3, तो टाइम का रेशियो होता 3:2 फॉर सेम डिस्टेंस. फॉर सेम डिस्टेंस अगर डिस्टेंस सेम होता, बट एक्चुअल सिनेरियो क्या है, डिस्टेंस हमारा है 2:3. ठीक है, तो अगर 1 यूनिट डिस्टेंस होता हमारा तो टाइम का रेशियो होता 3:2. बट पहले वाले केस में डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2. सेकेंड केस में डिस्टेंस 3 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 3. तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2 × 3 = 2 × 3, यानी कि 6:6, यानी कि 1:1. तो एक्चुअल रेशियो ऑफ टाइम विल बी 1:1. टोटल टाइम आ रहा है 2 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू 84 मिनट्स. ओके, 84 मिनट्स आ रहा है. किसी भी एक केस में वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस का. तो पहले वाले केस में निकाल लेते हैं. फर्स्ट केस में 2/5 डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो अगर हम मान ले 2d/5 डिस्टेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू टाइम कितना लगा है, 2 यूनिट्स 84, 1 यूनिट विल 42, तो 42/60 टाइम इनटू स्पीड विच इज 40, तो दैट विल बी 28. 2d/5 इज 28, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 70. ठीक है, यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि d टोटल डिस्टेंस है, तो d की जगह x मान लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पहले वाले केस में 5d माना हुआ है. तो डिस्टेंस हमने मान लिया x, 2x/5, hence x is equal to 70 kilometers. क्या ये बात समझ पा रहे हो?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The speed of a river is 16 km per hour. The speed of motor boat in still water is 64 km per hour. How much distance can the motor boat cover downstream in 40 minutes? Downstream speed क्या होगा? Downstream speed will be equal to speed of the river plus the speed of motor boat, यानी कि 64 plus 16, 80 km per hour. So distance traveled in 40 minutes, this distance will be equal to 80 into 40 by 60, यानी 80 into 2 by 3, 160 by 3, which will be 53 and 1 by 3 किलोमीटर. ठीक है, किलोमीटर पर आवर नहीं होना चाहिए, दिस विल बी किलोमीटर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. A covers 1/3 of a distance at 15 km per hour, 1/3 at 25 km per hour, and the rest of his distance traveled at 60 km per hour. To find the average speed of A for the whole journey. Average speed for the whole journey. तो डिस्टेंसेस जो ट्रैवल्ड है वो इक्वल है. 1/3 डिस्टेंस एट 15 km per hour, 1/3 at 25 एंड 1/3 at 60. और एवरेज स्पीड चाहिए हमको, तो डिस्टेंस को की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. 1/3 at 15, let us say d/3 at 15, d/3 at 25 एंड d/3 at 60. तो लेट अस अज्यूम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा आंसर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. तो d/3 को अज्यूम कर लेते हैं एलसीएम 15, 25 और 60 का, विच कुड बी 300. तो d/3 इक्वल टू 300 मान लेते हैं. सो एवरेज स्पीड इन दैट केस विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू d, यानी कि 900. टोटल टाइम क्या आ जाएगा? फर्स्ट केस में टाइम क्या आ रहा है? 300 by 15, विच इज इक्वल टू 20, plus 300 by 25, which is 12, plus 300 by 60, which is equal to 5. So 900 by 37. This is average speed. 37 2s are 74, बचा 160, 160. ठीक है, तो 37 से कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स आएगा. आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी, 24.3 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग जाएगा कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, अगर हमारा ए है स्पीड का, सेकंड वैल्यू बी है, थर्ड वैल्यू सी है, तो आंसर विल बी 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस सी है. बिकॉज 3 वैल्यूज है, अगर 2 ही वैल्यूज होती है हमारी तो एवरेज स्पीड होता है हमारा उस केस में 2ab अपॉन a प्लस b. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C are in a cycle race of 3,800 meters. A cycles twice as fast as B. C cycles 1/3 as fast as B. C completes the race in 30 minutes. How far was B from the finishing line when A finished the race? अब A और B के बीच में क्या गिवन है? A cycles twice as fast as B. यानी कि बिटवीन A and B स्पीड का रेशियो क्या है? A की स्पीड डबल है, तो 2:1 का रेशियो है. क्वेश्चन आते हैं हाउ फार वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश द रेस. तो जब ए का स्पीड डबल है बी से, सेम टाइम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ फार इज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिशेस द रेस. तो ए ने पूरी रेस ट्रैवल कर लिया, स्पीड का रेशियो 2:1 है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? 2:1. एंड ए हैज फिनिश द रेस, तो ए ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 3,800 मीटर्स. 2 यूनिट्स की वैल्यू है 3,800 मीटर्स, तो बी ने क्या होगा? हाफ डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि 1,900 मीटर्स ट्रैवल किया होगा. फिनिशिंग लाइन से उतना ही पीछे होगा, 1,900 मीटर्स. आंसर विल बी ऑप्शन डी. सी की स्पीड से ऐसा कोई यहां पे कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर है? अगर जरूरत होता है जस्ट इन केस स्पीड पूछा होता है यहां पे, तो सी कंप्लीट करता है रेस इन 30 मिनट्स. द टाइम टेकन बाय सी इज 30 मिनट्स एंड सी साइकिल्स 1/3 एज फास्ट एज बी. तो बी को कितना टाइम लगेगा? सी की स्पीड क्या है? 1/3 है, बी की 1/3 है, यानी कि टाइम टेकन सी का 3 टाइम्स होगा, तो बी को टाइम लगेगा 10 मिनट्स का. और ए साइकिल्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो ए को टाइम हाफ लगेगा, यानी कि 5 मिनट्स का. जस्ट इन केस अगर टाइम पूछा होता है या स्पीड पूछा होता तो फिर हमें सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता. क्लियर है?
Next question. The distance between 2 points A and B is 84 kilometers. Two persons start at the same time, one traveling from A towards B and the other traveling from B towards A. If their respective speeds are 36 and 27 km per hour respectively, and they meet at point C between A and B, then find the value of CA upon CA minus CB. One is starting from A, other is starting from B, or speeds are 36 and 27. Obviously when two persons are meeting, तो they are starting at the same time, तो same time के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो उनका टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही सेम डिस्टेंस कवर्ड का भी रेशियो होगा. तो इफ A हैज कवर्ड D1 डिस्टेंस एंड B हैज कवर्ड D2 डिस्टेंस, then ratio of D1 to D2 क्या होगा? That will be in the ratio of speed, that will be 36 to 27, which is equal to 4:3. और टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 + 3 7 minutes, which is equal to 84 kilometers. टोटल डिस्टेंस तो 84 किलोमीटर है बिटवीन ए एंड बी. तो 1 unit is equal to 12 kilometers. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 48 kilometers, by B is 36 kilometers. And they have met at point C. So CA is 48, CA is equal to D1, CB is equal to 36. So CA upon CA minus CB, that will be equal to 48 upon 48 minus 36. So 48 by 12, which is equal to 4. Option D will be the answer. क्या ही क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If a person would have walked at 12 km per hour instead of 10, he would have walked 20 km more. तो स्पीड 10 से वॉक किया है, बट इंस्टेड अगर 12 से वॉक किया होता तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड हैव बीन 20 km मोर. ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम व्हेन ही वॉकड एट द पेस ऑफ 10 km per hour. तो अगर स्पीड हमारा 10 से 12 हो रहा है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? 10 to 12. एंड दिस डिफरेंस बिटवीन टू यूनिट्स, दिस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स. तो क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो 2 यूनिट इज इक्वल 20 किलोमीटर, 10 यूनिट विल बी 10 into 10 बाई 2 यूनिट 20 है, तो 1 यूनिट हमारा कितना है? 10 किलोमीटर. तो 10 into 10 100 किलोमीटर विल बी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बिकॉज एक्चुअली ट्रेवल कितने से किया है? 10 किलोमीटर पर आवर से. तो आंसर विल बी 100 किलोमीटर. ऑप्शन ए. बहुत ही केक वॉक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना इसमें. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 1 km per hour and speed of water current is b km per hour. Then find the value of a square plus b square. It is given that the boat covers 3x km against the current in 0.5x hours and 2.4x km with the current in 0.3x hours, where x is a positive irrational quantity. अब x की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, बट क्या पता है हमें स्पीड मिल जाएगा, बिकॉज बोट इज कवरिंग 3x km डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट इन 0.5x hours. अगेंस्ट द करंट यानी कि अपस्ट्रीम. स्पीड क्या आएगा? 3x डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिवाइड बाय 0.5x टाइम है, यानी कि 6 km per hour. और यही डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? 2.4x डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिवाइड बाय 0.3x, विच इज 8 km per hour. तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गई हमको. यहां से a और b की वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज अपस्ट्रीम क्या है? दैट इज a माइनस b, और डाउनस्ट्रीम है a प्लस b. a माइनस b इज 6, a प्लस b इज 8. ऐड कर दो दोनों को. So a is equal to 7 आ गया, b is equal to 1 आ गया. Question is asking about a square plus b square, so 7 square plus 1 square, which will be equal to 50. Clear है? Next question. A train overtakes two persons walking along a railway bridge. The first one walks at 4 km per hour and the other one walks at 6 km per hour. एक की स्पीड है 4 km per hour, सेकंड की स्पीड है 6 km per hour. अब हमें डायरेक्शन नहीं पता है, वेदर दे आर वॉकिंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन, बट या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं. बट हमें क्या पता है? वी नो द ट्रेन नीड्स 4.2 एंड 4.8 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम. जब ट्रेन दोनों को ओवरटेक कर रही है तो टाइम कब ज्यादा लग रहा है? टाइम सेकंड पर्सन के केस में ज्यादा लग रहा है. जिसके केस में टाइम ज्यादा लगेगा वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा? कम होगा, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केस में सेम होगा. ट्रेन अगर एक पर्सन को क्रॉस कर रही है तो इन दैट केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन in both cases. So in both cases distance traveled by the train is same. Distance is same. तो speed will be inversely proportional to time. Time की वैल्यू गिवन है,
टाइम का रेशियो क्या है 4.2:4.8, या बेसिकली 42:48, 7:8। टाइम का रेशियो आ रहा है 7:8, तो स्पीड का रेशियो होगा 8:7। Isn't it so? सेकंड वाले की स्पीड ज्यादा है बट स्टिल रेशियो कम आ रहा है, स्पीड का 8:7 आ रहा है, यानी कि स्पीड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, बिकॉज अगर ऐड हो रहा होता तो स्पीड का रेशियो में सेकंड वाले के केस में स्पीड ज्यादा आता। Isn't it so? यानी कि स्पीड डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो रही होगी पर्संस की। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहा हूं? ठीक है, बिकॉज बोथ आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये भी हो सकता था कि एक पर्सन किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरा किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, दोनों जा तो सेम डायरेक्शन में रह रहे हैं। और पक्की बात है क्योंकि स्पीड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है हमको, सो दैट इंप्लाइज कि द पर्सन्स आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये पर्सन्स भी जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में स्पीड हमारा हो जाएगा s-4 और सेकंड केस में हो जाएगा s-6। Isn't it so? बीच का गैप कितना है? बीच का गैप है हमारा 2 किलोमीटर पर आवर का, और स्पीड का रेशियो आ रहा है 8:7। तो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी एक केस में स्पीड निकाल लो, 8 यूनिट हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज इक्वल टू s-4। तो s-4 is 16, s is equal to 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, next question. In still water, a boat can cover a distance of 10 km at the speed of 5 km per hour in certain time interval, and during the same time interval it can cover a distance of 8 km while moving upstream in a river. So in the first scenario, still water में the boat is covering a distance of 10 km at the speed of 5 km per hour. तो time taken क्या होगा? 10/5, 2 hours. And in the second scenario, during the same time interval, यानी कि in 2 hours, it can cover a distance of 8 km while moving in the upstream direction. तो upstream speed क्या आ जाएगा यहां से? That will be 2 hours में 8 km ट्रेवल कर रहा है, तो 8/2, 4 km per hour. So 5 km per hour is the speed of the boat in still water, and 4 is the speed of the boat minus speed of the stream, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cars A and B start at the same time from S and T towards T and S respectively. After passing each other at point Y, they take 6 hours 40 minutes and 3 hours 45 minutes to reach T and S respectively. If the speed of car A is given as 60 km per hour, then how much time did car A take to reach point Y? Time taken by car A to reach point Y क्या होगा? That is the question. So meeting point का question है simple. Cars A and B are going from S and T towards T and S. They both are starting at the same time, और मीटिंग के बाद का टाइम हमें गिवन है. So let us say the time taken in meeting is T hours. And after meeting, the first car यानी कि car A is taking T1 time and the second car is taking T2 time. तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2. ओके, सो T यहां से वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1, और T1 की वैल्यू क्या है? बिकॉज A एंड B आर टेकिंग 6 hours 40 minutes and 3 hours 45 minutes टू रीच T एंड S रेस्पेक्टिवली. तो T1 की वैल्यू है 6 hours 40 minutes, which will be 6 and 2/3 hours. So 6 into 3, 18 plus 2, 20/3. That is T1. Multiplied by T2, और T2 है 3 hours 45 minutes, यानी कि 3 and 3/4. 12 plus 3, 15/4. So T is square root 25, यानी कि 5 hours. And they met at point Y. So time taken by car A to reach point Y will be equal to 5 hours. Option C will be the answer.
क्या क्लियर है? आंसर विल बी 5 hours. Isn't it so? ठीक है. जस्ट इन केस अगर S2 कार B का स्पीड पूछा होता तो क्या करते? उस केस में could have applied the formula that S1 by S2 this is equal to square root of T2 by T1. Okay, and hence S1 by S2 will be equal to square root of T2. T2 की वैल्यू क्या है? 15 by 4 divide by T1 which is 20 by 3, which becomes equal to square root of 3 by 4 into 3 by 4, 9 by 16. तो S1 by S2 comes out to be 3 by 4. ठीक है. और S1 हमारा कितना है? S1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 60 और रेशियो है 3 by 4 का. तो S2 हमारा क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से S2 की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसके बाद डिस्टेंसेस की वैल्यू भी निकालनी हो तो वो भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक that appeared in SRCC GBO examination. In general, questions are very easy. और किसी भी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट आउट. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक बटन एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel or you can message me on Telegram at ADITYAKT. Take care.